Hello and welcome all the aspirants. And a very common question जो aspirants पूछते हैं that and they feel rather is that preparation exam is approaching and you're not ready for the exam. Now people, if you are targeting UPSC, तो UPSC exam में you have to see preparation in a cyclic manner where the first stage is prelims, then is your mains and then your interview. तो एक cycle है which preparation has to be conducted and preparation has to be streamlined as per the requirements of the exam. So when you try to see क्या issue है, are you feeling down? You feel that targets are not able to meet. You feel that things are not working. There is a self doubt. विश्वास मानिए ये सब normal है. So first of all, take it easy. Accept that there is some problem that has to be addressed. तो कोई भी एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स उनके साथ आती हैं एंड दैट इज समथिंग द ओनली वे इज दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशंस. अब why these things are happening, we'll also get into that. Multiple reason है. पहला तो too many things at the same time. You are doing GS right now, you are doing optional, CSAT is also going in your head, तो आप CSAT भी पढ़ना शुरू कर देते हो. In GS there are so many subjects. Right now you are focusing on prelims syllabus, but mains का syllabus भी आ जाता है, फिर CSAT भी आ जाता है. Then when you try to solve questions, तो लगता है कि पिछला रिवीजन नहीं हो रहा है. If you are reading a new subject, you are forgetting the old one. So there are so many things which is happening. Then स्टूडेंट्स जब आप प्रिपेयर करते हो, लेट्स से यू आर जॉइंड अ कोचिंग, ऑप्शनल भी कर रहे हो, तो यू टेंड टू हैव अ वेरी ओवर रियलिस्टिक टारगेट, आप अनरियलिस्टिक टारगेट आप बनाते हो एंड दैट लैक ऑफ रियलिस्टिक टारगेट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज. सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो? रिमेंबर, योर स्कोर विल इंप्रूव ओनली थ्रू सेल्फ स्टडी. योर प्रीलिम स्कोर, योर मेन स्कोर विल ओनली इंप्रूव थ्रू सेल्फ स्टडी. अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हो, रिवीजन अच्छा करते हो, तभी चीजें वर्क करेंगी. नो दैट इज वन एरिया वेयर कॉमनली पीपल लैक. You do not revise and the reason why you do not revise because आपको लगता है कि हम और अलग पढ़ ले, एक और नया टॉपिक पढ़ ले, एक और एक सब्जेक्ट कवर कर ले, and I just tick my boxes in terms of syllabus that I should be covering. So that is also one of the aspects. Then there is a peer pressure. If your friends are doing well, you will feel down. If you feel that somebody is getting better score, now we live in a system where हमारा एक pool होता है, उसमें कुछ अच्छे aspirants होते हैं and they tend to put pressure on you. So there is a peer pressure also and these are things that have to be understood. पहली बात, are you a person who is giving for the first attempt? अगर आप first attempt का में एग्जाम दे रहे हो, believe me, there is too much pressure that you are facing right now because आप बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो. You are doing CSAT, you are doing optional, you are doing GS, and then when you try to do so many things, you juggle. कभी आप आंसर नहीं लिख पाते हो, कभी टेस्ट में नंबर्स नहीं आते हैं. सो दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बेस्ट वे इज टू रिड्यूस द एरियाज ऑफ स्टडी. आप लिमिटेड एरियाज को पढ़ो एंड बी मोर इफेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिड्यूस द टाइम एंड रिड्यूस योर टारगेट्स ऑल्सो, और टारगेट्स को आप अकॉर्डिंगली लेके चलो. फॉर एग्जाम्पल, इवन टुडे इफ आई से, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, व्हेन इज द प्रीलिम्स? प्रीलिम्स इज ऑन 25th of May. So 5 months उधर and 1.5 month, more than 6 month time is there, which is more than sufficient for the examination. अभी क्या करना है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है एस्पिरेंट्स को, एक फीलिंग आती है दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग. आप में टेस्ट में नंबर्स नहीं आते हैं, रिवीजन आपका, रिकॉल फैक्टर इज वीक. तो रिकॉल रिवीजन इशू इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. और यहां पे दो चीजें हैं. टाइम, सो वन इज एज द टाइम इंप्रूव्स आपका कंटेंट का जो रिटेंशन है वो कम होता रहता है. एंड व्हेन यू आर, आपका अगर कंटेंट का रिटेंशन कम होगा तो एप्लीकेशन इज वीक. So let's say you solve a MCQ, you're not able to score because you're not able to apply them. और आप apply इसलिए नहीं कर पाते हो because your revision part is not ready. So that is definitely a problem. जहां जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कंटेंट का रिकॉल कम होगा, and that is primarily because of poor revision. and आपको कुछ इसमें नया नहीं करना है. You just have to invest 1 hour daily. यानी आपको कुछ नया पढ़ने के बजाय एक सब्जेक्ट को आप कम करिए, एक टॉपिक को कम करिए एंड फोकस ऑन रिवीजन 1 hour डेली या फिर 1.5 hour, जो भी आपको सूट करता है. आई ऑलवेज टेल माई एस्पिरेंट दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा थिंग, आप सेम चीज को मल्टीपल रिवाइज करिए एंड दैट इज हाउ थिंग शुड बी. तो अगर आपका रिवीजन अच्छा होगा, इफ यू रिवीजन, सो व्हाट यू रिक्वायर इज टाइम बाउंड मल्टीपल रिवीजन. कीप योर सोर्सेज लिमिटेड. इफ यू आर इन कोचिंग, रीड योर कोचिंग नोट्स. अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं तो सिलेक्टिवली उसको पढ़िए. ऑल्सो डू द मैपिंग ऑफ प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं यूपीएससी से जो जुड़े हुए हैं, द टॉपिक्स विच आर रेलेवेंट, यू हैव टू फोकस हियर. सो एक्टिव रिकॉल आपका तभी अच्छा होगा व्हेन यू गो फॉर मल्टीपल रिवीजन. इन्वेस्ट दिस 10 to 20% रूल. तो 10 to 20% रूल में मैं क्या बताता हूं कि आपका 10 to 20% ऑफ योर टाइम शुड गो ऑन रिवीजन. अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो,
यस आपका शायद 20% सिलेबस स्लो होगा, मे बी यू विल बी एबल टू स्कोर लेस इन द एरियाज दैट यू हैव नॉट रेड, बट इन द एरियाज जो आपने पढ़ लिए हैं यू आर गोइंग टू मेक वंडर्स, डू वंडर्स हियर. So recall via revision is what will decide the outcome and your selection as well. So revision दोनों का conceptual and as well as the current affair. Now prelims 2025 को हमारा एग्जाम का डेट डिफाइंड है, that means 25th of May 2025 is the date. So technically if I say more than 4 months here, 1 month in December and we are right now in mid of November, यानी you have more than 6.5 months. तो आप almost 6 month आपके पास है. And what you should have a two kind of approach, the GS based approach and the CCET based approach. Now in both the areas I'll be creating a detailed video जिस पर हम लोग subject wise strategy पे भी हम लोग जाएंगे. So when I talk about GS based approach, तो आपको subject wise topic wise यानी आपको topics subject उठाना है and you focus on topics. और यहां पर आप क्या करिए, if possible give your topic wise test. Now we are launching a test series कम मेंटरिंग कोर्स, टेस्ट सीरीज कम मेंटरिंग प्रोग्राम, जहां पे हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट को करेंगे. तो आप सब्जेक्ट उठाइए एंड टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए. दैट इज द बेस्ट वे टू रिकॉल एंड रिवाइज. एंड व्हेन यू डू दैट देन यू गो फॉर सीसैट पे भी जाइए, अगेन टॉपिक वाइज एंड सेक्शन वाइज. सो व्हेन यू जब आपका टॉपिक्स रेडी होंगे उस पर टेस्ट दीजिए, एंड व्हेन यू कंप्लीट द इंटायर सब्जेक्ट देन यू गिव द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. नॉर्मली एस्पिरेंट क्या करते हैं, दैट दे गो फॉर डायरेक्टली दे गो फॉर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या फिर PYQ FLT चले जाते हैं. डोंट डू दैट. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे बिकॉज रिवीजन पार्ट जो है शायद उतना अच्छे से नहीं हो पाता है. बट व्हेन यू फोकस ऑन लिटिल पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो, आपने पॉलिटी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सिर्फ उस पर दे रहे हो, तो दैट विल इंप्रूव योर रिविजन. So that is how it has to be seen. तो सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज अप्रोच आपका रखिए, एंड इस पर जब करेंगे तो योर रिविजन पार्ट विल डिसाइड द आउटकम. वन मोर थिंग, प्रिपरेशन को हमेशा PYQ बेस्ड रखिए. इन लास्ट 2023 के प्रीलिम्स में अराउंड 10 क्वेश्चंस यानी 10 क्वेश्चंस आपके PYQ बेस्ड थे या PYQ से आए थे, which means that almost 10% of syllabus will actually, और हर साल में भी 5-7 क्वेश्चंस PYQ और 10 क्वेश्चंस तक आते हैं, which means your PYQs, the previous year question is your basic guideline. Also UPSC का prelims तभी निकलेगा when your static is strong. Make sure the static is very thorough, very effective, and you are able to do that. So these things will decide the outcome. आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपका रिवीजन अच्छा होगा. If I say इकोनॉमी, कोई क्वेश्चन पूछा, आपका रिवीजन अच्छा है, you'll be able to recall, you can solve questions better. So आपकी प्रिपरेशन में छोटा सा एक रूल चेंज करिए, अपने रूटीन तरीके से अपने रिवीजन के टाइम को बढ़ाइए एंड स्टडी टाइम को थोड़ा कम करिए. बिलीव मी, इट विल डू वंडर्स एंड यू विल सी द रियल आउटकम ऑन ग्राउंड एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल विल गो अप. ये प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए ये बात बहुत जरूरी है, how to improve your confidence and how to motivate yourself for the journey, and believe me, things will work for you. Take care, God bless you. Also people who are looking to join our prelims mentoring course, हमारा prelims mentoring course ये 24th नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, and this prelims mentoring course that we are starting from 24th नवंबर, ये हम लोग जो है टेस्ट स्टार्ट करेंगे. इसका डिटेल्स शेड्यूल मैं आपको शेयर करूंगा. यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन सी द डिफरेंस. इफ यू जस्ट फॉलो दिस टेस्ट सीरीज, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर प्रिपरेशन एंड इट विल टेक प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट दैट वी आर लुकिंग एट. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू एंड कीप अप द गुड वर्क.